Hello kids, how are you all? Hope you are doing well. Today we will start your rhymes book, My Vision, Rhymes and Balgit C. Rhyme first, Baba Black Sheep. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my Dave, one for the little boy who lives down the lane. Second rhyme, Little Tommy Tucker. Little Tommy Tucker sings for his supper. What shall we give him? White bread and butter. How shall he cut it without a knife? How shall he marry without a wife? Next rhyme, Birdhouse. Little bird, look at me. I have a birdhouse. Oh, come and see. Little boy, under the tree. I like this house, give it to me. Next time, the kite. Oh, look at my kite, almost out of sight. How pretty it flies, right up to the sky. Pretty kite, almost out of sight. What do you spy in the bright blue sky? Next, teddy bear. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoe. Teddy bear, off to school. Next time is springtime. I see rain clouds. I see birds' nests, butterflies too, flowers too. Everything is growing, the wind is gently blowing. Spring is here. Next, London Bridge. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down. My fair lady, build it up with iron and steel, build it up with iron and steel, my fair lady. Next time is diddle dumpling. Diddle dumpling, my son John went to bed with his trousers on, one shoe off and one shoe on. Diddle dumpling, my son John. Next, hop a little. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3, run a little, skip a little, tap, one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. 10th time, good night. Bedtime, candle time to go to bed, time to close the storybook, not another page. Dream time, drowsy time, all the stories read, time to put the toys away, time to go to bed. Now we will study about this story, The Hare and the Lion. Once there was a cruel lion in a jungle. All the animals were afraid of it. तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक क्रूर लायन रहता था. सभी एनिमल्स जो थे उससे बहुत ही डरते थे. Because the lion had killed many animals for its food, to get rid of this problem, all the animals decided to send an animal daily for lion's meal. तो सभी एनिमल्स जो थे वो लायन से डरते थे क्योंकि लायन जो था सभी को मारकर खा जाता था. तो सभी ने ये सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी. इसीलिए सभी एनिमल्स ने ये डिसाइड किया कि एक एक करके सभी डेली लायन की मील बनेंगे यानी लायन का भोजन बनेंगे. वन डे इट वॉज द हेयर्स टर्न. तो एक दिन जब एक खरगोश की टर्न थी, द हेयर थॉट एन आइडिया टू सेव इट्स लाइफ एंड वेंट टू द लायन. तो उस खरगोश ने विचार किया, उसने एक आइडिया किया कि वो अपनी लाइफ किस तरह से बचा सकता है और उस लायन को वहां से कैसे दूर भगा सकता है. तो यहाँ कुछ पिक्चर्स है जिनमें ये स्टोरी मेंशन्स है. लायन सेड, यू लिटिल हेयर, हाउ डू यू टू बिलीव. तो यहाँ पर लायन कहता है कि
अरे लिटिल खरगोश, तुम्हारी ऐसे कैसे हिम्मत हो गई कि तुम लेट आए हो? Hare said, "Oh my king, please forgive me. मुझे माफ कर दो." Then Hare said, "My lord, when I were coming to you, and another lion called me." तो खरगोश कहता है कि जब मैं आपके पास आ रहा था तो एक दूसरे लॉयन ने मुझे बुला लिया था। Then Hare said, "He said to me that he is the only king of the jungle and no one can defeat him." तो खरगोश कहता है लॉयन से कि उसने मुझे कहा कि मैं ही जंगल का राजा हूँ। वो दूसरा लॉयन उसे मिला था तो उसने क्या कहा उसे कि केवल मैं ही जंगल का राजा हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। द लॉयन बिकेम एंग्री ऑन हियरिंग दिस। तो जो लॉयन होता है वो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। देन लॉयन सेड, "What? I will not forgive that foolish. Take me to the another lion." तो शेर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उस मूर्ख को माफ नहीं कर सकता, तुम अभी मुझे उस दूसरे शेर के पास लेकर चलो। Then the hare led the lion to a deep well. इसके बाद जो खरगोश होता है वो लॉयन को एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। The lion looked down and saw its own reflection in water and thought it is the another lion. तो शेर क्या करता है? शेर उस कुएं के अंदर जो पानी होता है उसमें अपनी परछाई को देखता है और विचार करता है कि ये कोई दूसरा लॉयन है। Then lion said, "You coward, I will kill you." तुम कायर हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। The lion's voice echoed loudly. He thinks the another lion is also roaring on him. तो जैसे ही शेर की वॉइस एकदम से बोलता है तो वो गूंजने लगती है, तो गूंजने की वजह से वो दोबारा वापस रिपीट होती है। तो शेर सोचता है कि वो दूसरा शेर जो है वो भी उस पर बुरा रहा है। Then the lion said, "You dare to roar on me? Now I will definitely kill you." तो अभी शेर क्या कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे दहाड़ रहे हो, अब तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। अगेन द वॉइस echoed. उसके बाद फिर से उसकी जो वॉइस थी कि इको थी वो वापस से रिपीट हो गई। ऑन दिस द हेयर इनसाइड द लॉयन। और इस तरह से जो वहां पर खरगोश था उसने लॉयन को और एक्साइटेड कर दिया। लॉयन हु देन हेयर सेड, "माय लॉर्ड, ही इज चैलेंजिंग यू." तो खरगोश कहता है कि माय लॉर्ड ये आपको चैलेंज कर रहा है। नाउ द लॉयन ग्रू वेरी एंग्री एंड जंप्ड इनटू द वेल। तो अब शेर जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कुएं में कूद जाता है। हेयर सेड, "हियर आई कम टू किल यू." मैं तुम्हें आ रहा हूं मारने के लिए। द लॉयन वॉज किल्ड एंड द हेयर वॉज वेरी हैप्पी ऑन इट्स ट्रिक। तो इस तरह से शेर मर जाता है और खरगोश बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसके ट्रिक कामयाब हो जाती है। ऑल द एनिमल्स वर नाउ एबल टू लिव हैप्पीली इन द फॉरेस्ट। तो अब जितने भी जानवर उस फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में रहते थे, सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। सो मोरल, डोंट लॉस कॉमन सेंस व्हेन यू आर इन ट्रबल। तो यानी जब भी आप कभी परेशानी में होते हो तो कभी भी अपनी कॉमन सेंस खत्म नहीं करनी चाहिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे बालगीत। सुबह हो गई, काला कौआ छत पर बैठा, कैसा शोर मचाता है, काव काव करके वह तो मेरी नींद भगाता है। इधर से मुर्गा कुकड़ू कुकर मुझको यह समझाता है, सुबह हो गई अब तो उठ जा, क्यों आलस तुमको आता है। हम पढ़ेंगे हम बच्चे हैं भोले भाले, छोटे हैं पर हिम्मत वाले, नन्हे पांव और हाथ हमारे इस धरती के हैं रखवाले। नन्हे कदम जो उठ जाएं, रोके पर भी ना रुक पाए, आंधी तूफान चाहे आए, हम मंजिल तक बढ़ते जाएं। इसके बाद है ऊपर पंखा चलता है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा,
मामा हो गया गंजा, गंजा गया जेल में, बेबी बैठा रेल में। अब हम पढ़ेंगे मैना रानी। मैना रानी चैन से बैठी पीती पानी, उड़ उड़ कर सबका मन बहलाती, मानो अपने पास है बुलाती। पास अगर कोई आ जाए, पंख फैलाकर तुरंत उड़ जाती। जब ये सुंदर गीत सुनाए, सबका दिल खुश हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाथी राजा। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले, पूंछ हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मीठे गन्ने खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। अब हम पढ़ेंगे अम्मा आज लगा दे झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अब हम पढ़ेंगे रानी बेटी। पापा मुझे किताब मंगा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी, भैया के संग जाऊंगी, भैया के संग जाऊंगी। नई नई बातें पढ़कर मैं भी सबके मन को भाऊंगी, भैया सा पढ़ लिख कर मैं भी रानी बेटी कहलाऊंगी। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। जादू का एक अजब पिटारा पापा घर में लाए, कंप्यूटर का गजब तमाशा सबका मन बहलाए। छठ संसार की सैर कराए, पिछड़ों को भी खूब मिलाए, जो चाहे वह काम करे, थकने का कभी नाम न ले। हम पढ़ेंगे एक चिड़िया के बच्चे चार। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते। घूम घाम जब घर को आते, माता को ये वचन सुनाते, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अब हम पढ़ेंगे टॉफी का पेड़। मेरी प्यारी अच्छी नानी, मुझे सुनाओ एक कहानी, जिसमें हो टॉफी का पेड़, बिस्कुट चॉकलेट का हो ढेर। पापा जब दफ्तर से आए, खूब खिलौने साथ मिलाए, मेरी प्यारी अच्छी नानी, मुझे सुनाओ एक कहानी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक कहानी मेहनत का फल। वरुण पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह नियमित रूप से अपनी पढ़ाई नहीं करता था। वह बस परीक्षा के समय में ही पढ़ाई करता था। नतीजा ये होता था कि वह कभी अच्छे अंक नहीं पाता था। उसके माता पिता भी उससे बहुत परेशान थे। तो वरुण एक बच्चा था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, जो कभी पढ़ाई नहीं करता था, और उसके माता उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वो केवल परीक्षा के समय ही पढ़ा करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया। उसके पिता ने चींटी की ओर संकेत किया। चींटी दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। वह बार बार ऊपर चढ़ती और नीचे गिरती। उसने कई बार ऐसा किया, मगर उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो एक दिन उसके पापा ने विचार किया। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उन्होंने दीवार पर एक चींटी चल रही थी, बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे को उस चींटी को दिखाया कि देखो किस तरह से ये चींटी बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है, बार बार गिर रही है और फिर चढ़ रही है, लेकिन ये अपना प्रयास करना नहीं छोड़ रही। इसके बाद 7-8 बार गिरने के बाद चींटी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। उसके पिता ने कहा, इस चींटी को देखो, यह अनेक बार नीचे गिरी, परंतु इसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तुम्हें भी इस छोटे से जीत से कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए। तो अब वो अपने बेटे को सिखाते हैं कि 7-8 बार प्रयास करने के बाद वो चींटी ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। तो वो अपने बेटे को यही बताते हैं कि जब इस चींटी ने प्रयास करना नहीं छोड़ा, तो तुम्हें भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए और कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद तुम्हें भी अच्छी सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें रोज नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वरुण अपने पिता की शिक्षा को समझ गया। उसने नियमित रूप से पढ़ाई करना आरंभ कर दिया। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। वार्षिक परीक्षा में वरुण को अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वरुण अपने पिता के पास गया और अपने जीवन को बदलने की शिक्षा देने के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया।
शिक्षा, तो यहाँ आपको इससे क्या शिक्षा मिली? मेहनत का फल मीठा होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नियमित रूप से मेहनत करना चाहिए। तो बच्चों, अगर हम मेहनत करेंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि सफलता आपके आसपास ही होती है, बस आपको उसको ढूंढना है। तो हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए।